Dear students, today we will start with the topic straight line in three-dimensional geometry. As you know, to find equation of a straight line, we need a point through which the straight line passes, and we need the direction of this line. Let's say this line has direction ratios A, B and C. So let us try to find out the equation of this straight line. Assume a general point x, y, z on this line. So can we say that the direction ratios of line AP are x minus x1, y minus y1 and z minus z1. This is the formula for finding direction ratios of a line when 2 points on the line are given. But we have assumed the direction ratios as ABC. So these three quantities must be same as ABC, so the ratio must be same. So the ratio of these three will be equal to the ratio of A, B and C. So this is the equation of a straight line which passes through the point x1, y1, z1 and which has direction ratios A, B and C. We can also represent this line in vector form. Let's say this point has position vector A vector and the line lies along the vector B vector. Assume a point P with position vector R vector. Can we say that AP is parallel to B? If AP is parallel to B, then AP vector equal to lambda B. AP vector is equal to OP minus OA, that is R minus A. So this is the equation of a straight line in 3D which passes through the point A and parallel to the vector B. So the equation must be remembered in both the forms, in three-dimensional form as well as in the vector form. We can use it in any of the two forms according to the question. Now the second type of equation, 2-point form. This is also known as the symmetrical form of a line, because there is a symmetry in the equation x1, y1, z1 and ABC, there is a symmetry, so it is called the symmetrical form. Now we will discuss the 2-point form. A line is passing through points x1, y1, z1 and x2, y2, z2. We have to find out the equation of the line AB. So let us assume a general point P on this line and let us term this as x, y, z. As the points ABP are collinear, so we can say that vector AP is parallel to vector AB. So the direction ratios of AP are x minus x1, y minus y1 and z minus z1. And the direction ratios of AB are x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. As these two lines AP and AB are parallel, so the direction ratios must be proportional. So we can say that the ratio of these two must be same. So this is the 2-point form of a straight line. This is the equation of a straight line which is passing through the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2. Now let us represent it in the vector form. Let us assume the position vector of A as A vector and position vector of B as B vector and position of vector of P as R vector. As AP is parallel to AB, so we can say that AP equal to lambda AB.
So AP vector is r minus a and AB vector is b minus a. So the equations becomes r equal to a plus lambda b minus a. This is the equation of a straight line which is passing through points, 2 points whose position vectors are a vector and b vector. So the equation must be remembered in both the forms, in vector form as well as the three-dimensional form. Now we will discuss how to find out the angle between two lines in the three-dimensional geometry. Angle, acute angle between two lines. Acute angle between two lines in three-dimensional geometry. Let's say दिस लाइन इज a प्लस लैम्डा बी. तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन को हम a प्लस लैम्डा बी लिखते हैं तो ये a पॉइंट से पास करेगी एंड b वेक्टर के पैरेलल होगी. अगर किसी लाइन को हम c प्लस म्यू डी लिखते हैं तो ये किसी c पॉइंट से पास करेगी एंड d वेक्टर के पैरेलल हो जाएगी ये लाइन. तो अब हमें इन लाइंस के बीच का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल थीटा दो लाइंस के बीच में है, तो ये इन दो वेक्टर्स के बीच में भी यही एंगल थीटा है, बी एंड डी के बीच में. क्या हमें पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को हम कैसे लिखते हैं? हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज बी डॉट डी बाई बी डी. तो जो वेक्टर्स के बीच में एंगल है वही एंगल लाइंस के बीच में होगा. सो वी कैन से दैट if theta is the angle between the lines then cos theta must be equal to this. और क्योंकि हमें acute angle चाहिए so we have to take the modulus of this expression ताकि वो मॉड लेने से वैल्यू पॉजिटिव हो जाए. so हमें वहां से acute angle मिलेगा. so this is the formula for the acute angle between the lines. तो हमें जस्ट क्या करना है, लाइन में जो वेक्टर्स हैं जिनके पैरेलल है ये लाइन उनका डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. Now we will discuss some problems based on straight line. Find a point on the line x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, which is at a distance of root 29 units from the point 1, 2, 3. तो ये कोई लाइन है हमारे पास, ये किस पॉइंट से पास कर रही है? 1, 2, 3 से पास कर रही है. ये हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की. तो ये 1, 2, 3 से पास कर रही है और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? 2, 3, 4 के. यानी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2, 3, 4. तो इस रेशियो को हम लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं. लेट्स टेक दिस रेशियो एज लैम्डा. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x, y, z इज 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3. तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा. ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट. तो ये लाइन पे हमने जो पॉइंट एज्यूम किया है, यहां से हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किया है. सो दिस पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज दिस लाइन. सो दिस इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा. तो ये इस पॉइंट को हम P एज्यूम कर लेते हैं. जो इस लाइन पे लाई कर रहा है इस पॉइंट को हम P एज्यूम कर लेते हैं. तो इसमें हमें क्या दिया है कि ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज रूट 29. ये हमें P पॉइंट फाइंड आउट करना है जो A से रूट 29 के डिस्टेंस पे हो. तो फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. AP इक्वल टू रूट 29.
डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाने से हमें क्या मिलेगा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू रूट 29। तो ये कितना हुआ, ये 29 लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट हो गया, तो रूट 29 कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट क्या हो गया 1। अब एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है मॉड एक्स, तो मॉड लैम्डा हो गया 1, तो लैम्डा कितना हो गया प्लस माइनस 1। तो लैम्डा को अगर हम 1 डालें तो हमें ये पॉइंट क्या मिलेगा 3,5,7, और लैम्डा को अगर हम -1 डालें तो हमें ये पॉइंट क्या मिलेगा -1, -1, -1। So these are the 2 points which are at a distance of root 29 units from the point 1, 2, 3। तो ये इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हो तो उस पर हम जनरल पॉइंट इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी कॉमनली यूज्ड इन द प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड acute angle between the lines x by 1 equal to y minus 2 by minus 1 equal to z by 3 and x by 2 equal to y minus 1 by 3 equal to z minus 2 by 5। ये हमें लाइंस के बीच में जो है एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमें 2 लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल निकालना है तो वो उनके वेक्टर्स के बीच में ही होगा। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है 0, 2, 0 से, और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, ये पैरेलल है 1, -1 और 3 के, और ये लाइन पास कर रही है 0, 1, 2 से, और किसके पैरेलल है 2, 3, 5 के पैरेलल है। तो हमने अभी अभी ये पढ़ा था कि एक्यूट एंगल अगर निकालना है तो जो वेक्टर्स हैं लाइन में उनके बीच में ही एक्यूट एंगल हमें निकालना है। तो अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो cos थीटा क्या होगा मॉड ऑफ b डॉट d बाय BD। तो ये b वेक्टर डॉट d वेक्टर क्या आ जाएगा 2 - 3 + 15 आ गया। b का मैग्नीट्यूड कितना है 9, 1, 10, 1, 11 रूट, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 + 9 13, 13 + 25 इज रूट 38। तो ये कितना हो गया फिर, ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय रूट 38 इंटू रूट 11, यानी कि रूट 418। सो दिस इज द acute angle between the 2 lines. So the angle between the lines is cos inverse of 14 by root of 418. Now let us move to the another question. Find whether the lines this are coplanar or not. ये बताना है कि लाइंस कोप्लेनर हैं या नहीं है। अब लाइंस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो लाइंस हमेशा कोप्लेनर ही होती हैं, बट 3D में लाइंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइंस। 2D में 3 तरह की लाइंस थी, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो अगर लाइन कोप्लेनर होंगी तो वो इन तीनों में से किसी तरह की होंगी। और 4th टाइप की लाइन जो है वो इस तरह की लाइंस हैं। ये लाइंस ना ही जो है ये पैरेलल हैं, पैरेलल भी नहीं है ये लाइंस, और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, कोइंसिडेंट भी नहीं है। तो ये लाइनें क्या है कोप्लेनर। तो ये जो कोप्लेनर लाइंस हैं ये कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। तो ये 4 टाइप की लाइन है। तो हमें प्रूव करना है कि लाइन कोप्लेनर यानी इन्हीं तीनों में से किसी एक तरह की है। तो क्या ये लाइनें पैरेलल है? नहीं, पैरेलल तो नहीं है, कोइंसिडेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, पर इनके डायरेक्शन रेशियो तो डिफरेंट है। 1 - 1 3 है, इसके 2 3 5 है। तो ये लाइंस कोप्लेनर, ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है। तो फिर अगर इनको कोप्लेनर होना है लाइंस को, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक तरह का होना पड़ेगा। तो ये तो है नहीं, तो फिर इसको होना पड़ेगा
इंटरसेक्टिंग लाइंस होना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हम इन लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके देख लेते हैं, अगर वो हमें मिल गया तो लाइंस कोप्लेनर हो जाएंगी। तो इन लाइंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि एनी पॉइंट, अगर इस फर्स्ट लाइन को हम इस रेशियो को लैम्डा अगर हम एज्यूम कर लें और इस रेशियो को अगर हम म्यू एज्यूम कर लें, then any point on this line can be taken as lambda comma 2 minus lambda comma 3 lambda, and any point on this line may be taken as 2 mu 3 mu plus 1 and 5 mu plus 2। तो ये हम पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं दो लाइंस पे। अब अगर ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग अगर ये लाइंस हैं, तो वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम होने चाहिए। तो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2 म्यू एंड 2 माइनस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 एंड 3 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 5 म्यू प्लस 2। अब यहां से देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा पॉइंट। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम डाल दें 2 म्यू, तो हमें क्या मिलेगा, म्यू हमें मिलेगा 1/5 एंड देयरफॉर लैम्डा हमें मिलेगा 2/5। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके देख लेते हैं। 3 लैम्डा इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 2, तो 6/5 इक्वल टू 3, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने दो इक्वेशन सॉल्व की, वहां से जो वैल्यू मिली वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, यानी इनका कॉमन पॉइंट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करके जो हमें x और y कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं वो z कोऑर्डिनेट से हमारा मैच नहीं हो रहा है। सो दीज लाइंस आर नॉन कोप्लेनर। ये लाइंस जो है ना, ये नॉन कोप्लेनर होंगी, कोप्लेनर नहीं होंगी। अगर होती तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर हमें मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3 ड्रॉन टू द लाइन x/1 इक्वल टू y प्लस 1/-2 इक्वल टू 2z माइनस 1/3। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो हम इस लाइन को। तो प्रॉपर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां से हमें ये z माइनस हाफ बाय 2 से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो अब ये लाइन जो है ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, 0, -1 और हाफ से पास कर रही है। तो ये लाइन हो गई मान लो, और ये जो है हमें पॉइंट दिया है a 1, 2, 3। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि m पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो m पॉइंट जो है वो तो लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, लैम्डा एज्यूम कर लें। तो m पॉइंट हम यहां से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कोमा -1 -2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा प्लस 1/2। ये हम पॉइंट m एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे ही लाई करता है। अब am इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं am के, m माइनस a। तो m में से अगर हम a सब्ट्रैक्ट करें, ये पॉइंट हमारा m है, तो इसमें से अगर हम a को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा -1 -2 लैम्डा -3 एंड 3 लैम्डा बाय 2 -5/2। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या हैं, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे ये है पॉइंट लाइन का, ये है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, -2 एंड 3/2। तो क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आना चाहिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं और वो 0 आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू +2 × 2 लैम्डा +3
प्लस 3/2 इंटू 3 लैम्डा माइनस 5/2 मस्ट बी इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो क्या मिला यहां से हमें 5 लैम्डा प्लस 5 प्लस 9 लैम्डा माइनस 15/4 must be equal to 0. So this is 29 lambda plus 5 must be equal to 0. So lambda is equal to minus 5/29. So the foot of perpendicular M becomes lambda comma minus 2 lambda minus 1. So minus 2 lambda minus 1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/29 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस 19/29। और 3 लैम्डा प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा माइनस 15/29 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। तो 29 माइनस 15 कितना हो गया, 29 माइनस 15 हो गया 14/2 इंटू 29। ठीक है, 14 हो गया। तो 14/2 हमारा कितना होगा, 14/2 हमारा हो गया 7/29 हो गया। ठीक है, तो ये हमें एम पॉइंट यहां से मिल गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसी तरह से अगर हमें डिस्टेंस पूछा जाता है, हमसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसकी जगह अगर डिस्टेंस पूछ लें कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस, तो डिस्टेंस के लिए हम पहले एम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर हम ए और एम के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसी और फार्मूले की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि इमेज निकालो इस पॉइंट की, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, तो उसके लिए कुछ नहीं है, इसकी इमेज जो ए पॉइंट की है वो हो जाएगी ए डैश। तो इमेज ए डैश हो जाएगी, तो एम क्या हो जाएगा, ए और ए डैश का मिड पॉइंट। तो जैसे कि हम एम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से हम ए डैश पॉइंट भी निकाल सकते हैं, तो इमेज भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस निकालना हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो या इमेज निकालनी हो, इन तीनों चीजों के लिए यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इन तीनों के लिए हमारे पास कोई अलग से फार्मूला हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। अब लाइन्स जो है वो चार तरह की होती हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। या तो लाइन्स पैरेलल होंगी, या तो कोइंसिडेंट होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो स्क्यू लाइन्स होंगी। ये लाइन्स स्क्यू लाइन्स हैं, ये फोर्थ टाइप है। तो पैरेलल लाइन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कोइंसिडेंट लाइन्स के बीच में तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में भी डिस्टेंस 0 ही होगा। तो अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो हम डायरेक्टली शॉर्टर डिस्टेंस को 0 लिख सकते हैं। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर वो हमें मिल गया यानी लाइन्स क्या इंटरसेक्टिंग, तो शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि वो जो है कोप्लानर सॉरी ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो डिस्टेंस लिख देंगे 0। अगर ये होंगी कोइंसिडेंट तब भी डिस्टेंस लिख देंगे 0। तो ये हमारे पास दो केस बचे। तो पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। फिर हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, नॉन कोप्लानर लाइंस। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये लाइन की इक्वेशन अगर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी है, यानी ये लाइन a पॉइंट से पास कर रही है और b के पैरेलल है। ये तो अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये वेक्टर भी b ही होगा। तो अगर ये लाइन c पॉइंट से पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, c प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये am जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। अब ये am डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हमारा b वेक्टर है और ये हमारा क्या है, ac वेक्टर है। इनके बीच में एंगल थीटा है।
थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए सी। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से एम की वैल्यू क्या हो गई, ए सी साइन थीटा हो गई। तो हमें एम ही तो फाइंड आउट करना था, एम ही तो था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो ये ए सी साइन थीटा आ गया। अब ए सी साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ए सी साइन थीटा को हम क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा ए सी क्रॉस बी का मॉड। ये फॉर्मूला तो पता ही है हमें कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड क्या हो गया हमारा, बी कैप भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मॉड। सो ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है। तो ए सी वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए लिख सकते हैं क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना है। दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या करना है, लाइंस के जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट से लाइन पास कर रही है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका हम क्रॉस ले लेंगे किसके साथ, बी के साथ। बी के साथ उसका क्रॉस ले लेंगे, पॉइंट्स को माइनस करेंगे और बी के साथ क्रॉस लेंगे और डिवाइडेड बाय बी का मॉड। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, दैट इज द नॉन कोप्लेनर लाइंस। जो लाइंस कोप्लेनर नहीं हैं उनके बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दो स्क्यू लाइंस जो हैं, दो नॉन कोप्लेनर लाइंस हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ये r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और ये लाइन मान लो है r इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। अब ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है, यहां पे ले लेते हैं पॉइंट, या चलो यहां भी ले सकते हैं। तो ये ए पॉइंट से पास कर रही है और ये लाइन पास कर रही है सी पॉइंट से, और ये वेक्टर हमारा कौन है, बी है, और ये वेक्टर हमारा कौन है, डी है। अब हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो एक परपेंडिकुलर फॉर्म कर लेते हैं हम इन लाइंस के बीच में। तो परपेंडिकुलर जो है, मान लो कि ये एक लाइन है पी क्यू, ये दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। शॉर्टर डिस्टेंस किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो जो भी लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी दोनों लाइंस के साथ, वही उनका शॉर्टर डिस्टेंस बन जाएगी। तो पी क्यू हमने एक लाइन एज्यूम की, लाइन सेगमेंट जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो P is the foot of the perpendicular drawn from point A on PQ। अगर हम A से PQ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हमें P पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से Q is the foot of perpendicular drawn from point C on PQ। अगर ये हम C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं PQ पे तो क्या मिलेगा, हमें Q मिलेगा। बट हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर टॉपिक में ये पढ़ा था कि ए बी लाइन की प्रोजेक्शन CD पे कौन होती है, MN। तो वो क्या होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्योंकि P फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो P कौन हुआ, प्रोजेक्शन। सो P इज द projection of A and Q is the projection of C। प्रोजेक्शन क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो P फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, A से डाला गया है, तो A की प्रोजेक्शन P है और C की प्रोजेक्शन Q है, यानी कि AC की प्रोजेक्शन कौन है, AC की प्रोजेक्शन है PQ। तो देयरफॉर जो हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालना था, यानी कि जो PQ था वो कौन हुआ, वो हुआ प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन PQ। बट हमें तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है ए डॉट बी कैप का मॉड। सो मॉड ऑफ ए डॉट बी कैप, यानी कि AC डॉट PQ कैप। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये बन गया हमारा AC डॉट
पी क्यू वेक्टर बाय पी क्यू वेक्टर का मॉड। अब पी क्यू वेक्टर कौन है? एक्चुअली पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू बी भी है एंड परपेंडिकुलर टू सी भी है, डी भी है। तो फिर पी क्यू जो है वो कौन हुआ? दिस इज सेम एज बी क्रॉस डी। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि कोई भी लाइन जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, कोई भी वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, वो क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। तो पी क्यू कौन होगा? ए क्रॉस बी, यानी कि बी क्रॉस डी हो जाएगा। तो पी क्यू को हम यहाँ पे बी क्रॉस डी लिख देते हैं और ए सी को हम लिख देते हैं सी माइनस ए। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये किसका बन गया फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बन गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला बन गया। तो हमने पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लिखा था, तो उसमें भी हमने सी माइनस से लिखा था, अभी भी हम सी माइनस से लिख रहे हैं। और सी और ए कौन है? जिन पॉइंट से ये दो लाइनें पास कर रही हैं। और साथ में हमने फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। यहां हम क्या ले रहे हैं? डॉट, बस यही डिफरेंस है। और क्रॉस हमने किसके साथ लिया था? बी के साथ, क्योंकि वहां पर दोनों ही लाइनों का वेक्टर बी था, पर यहाँ वेक्टर उनके बी और डी हैं, तो हम उसके प्लेस पे क्या ले रहे हैं? बी क्रॉस डी ले रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का। नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। Find shortest distance between the lines r equal to I minus j plus lambda 2i minus j plus 2k and r equal to 2i minus k plus mu into 4i minus 2j plus 4k। तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनके जो हैं आई जे के का रेशियो सेम है। फर्स्ट वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेकंड वेक्टर मिल जाएगा। तो यानी सेकंड वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर। तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, यानी लाइनें पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइनों के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मॉड। तो सी माइनस ए, सी और ए कौन थे? जिन पॉइंट से लाइनें पास कर रही हैं। तो ये दो पॉइंट हैं जिससे लाइनें पास कर रही हैं। तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मिलेगा आई प्लस जे माइनस के। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इन दोनों पॉइंट्स को, 2i माइनस के में से हमने i माइनस जे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें i प्लस जे माइनस के मिल जाएगा। क्रॉस बी कौन था? जो वेक्टर दोनों लाइंस में था, दोनों लाइंस जिस वेक्टर के पैरेलल थी। तो वेक्टर हमारा कौन है? 2i माइनस जे प्लस 2k है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो ये नीचे हमारे पास b का मॉड यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या है? 1 1 माइनस 1, सेकेंड क्या है? 2 माइनस 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या वेक्टर आएगा? आई कैप, फिर आएगा 2 प्लस 2 यानी माइनस 4 जे कैप, और फिर आएगा माइनस 3 के कैप। ये हमने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 16 एंड 10 26, रूट 26 by 3। So this will be the distance between the two parallel lines. Next question है हमारा find distance between the lines. x minus 1 by 2 equal to y minus 2 by 1 equal to z minus 3 by 2 and x minus 2 by 3 equal to y plus 1 by 2 equal to z plus 1 by 1। ये हमें इन दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये दो लाइनें जो हैं ये पैरेलल तो नहीं है, ये लाइन का वेक्टर अलग है, ये अलग है, वेक्टर लाइनें पैरेलल नहीं है। तो हम इसमें शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला था हमारा? हमारा फॉर्मूला ये था शॉर्टर डिस्टेंस इक्वल टू सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी।
ये फॉर्मूला था। तो C माइनस ए क्या है, ए और सी क्या था, ए और सी वो पॉइंट्स थे जिससे दो लाइनें पास कर रही है। तो फर्स्ट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 3 से। सेकंड लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 -1 -1 से। तो इन पॉइंट्स को माइनस करने से हमें क्या मिला, I कैप -3 J कैप -4 K कैप। ये वेक्टर हमें इन पॉइंट्स को माइनस करके मिल गया, ठीक है। और B क्रॉस D निकालना है। तो B क्रॉस D कौन था, B क्रॉस D वेक्टर हमारा था, B वेक्टर था जो फर्स्ट लाइन जो है हमारी उसकी जो डायरेक्शन है वो B था और सेकंड लाइन की डायरेक्शन जो है वो D था, ठीक है। तो एक तो हमें C माइनस ए लेना होता है, यानी कि जो पॉइंट्स हैं ऊपर और नीचे ये A और C पॉइंट्स, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। एक जो इनके वेक्टर्स हैं B और D, इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 2 1 2 है एंड 3 2 1 है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 4 यानी कि -3। देन दिस बिकम्स 2 - 6 -4 एंड माइनस लगाएंगे तो +4 और ये 4 - 3 यानी कि 1। ये हमारा आ गया B क्रॉस D, क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9 + 1 10 और 16 226। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है -3 -12 और -4 यानी कि कितना हो गया, 19। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 19/√26 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करेंगे। इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये जो दो लाइंस थी हमारी, ये लाइन थी और ये लाइन थी। ये लाइन हमारी किस पॉइंट से पास कर रही थी, ए पॉइंट से। ये लाइन हमारी किस पॉइंट से पास कर रही है, ये सी पॉइंट से पास कर रही है। इसकी डायरेक्शन हमारी क्या है, 2 1 2 है। इसकी डायरेक्शन हमारी क्या है, 3 2 1 है। इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, PQ है, जो दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने अभी PQ की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, फॉर्मूला यूज करके निकाली। तो PQ की अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बट हमें इक्वेशन निकालनी हो PQ की अगर, तो क्या करेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो PQ डिस्टेंस हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बट हमें अगर PQ की इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो P पॉइंट लाइन 1 पे है, ये लाइन 1 है। तो लाइन 1 का पॉइंट हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, 2 λ + 1 λ + 2 एंड 2 λ + 3। और Q पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा इस लाइन पे है। तो Q पॉइंट को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 3μ + 2 2μ - 1 एंड μ - 1। ये एज्यूम हम कर सकते हैं। अब हम PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, वो होंगे 3μ - 2 λ + 1 2μ - λ - 3 एंड μ - 2 λ - 4। ये हमने इनको माइनस कर दिया, तो वहां से हमें PQ के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब PQ जो है वो तो परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन के। तो फर्स्ट लाइन के अगर परपेंडिकुलर है तो ये हैं PQ के डायरेक्शन रेशियोज और ये हैं फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं, 2 into this + 1 into this + 2 into this। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब PQ L2 लाइन की भी परपेंडिकुलर है, तो इसका लाइन 2, ये लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इसके साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसके साथ भी हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। 3 2 एंड 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, किसका लेना है, PQ के डायरेक्शन रेशियोज का। तो ये PQ के डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो 2 into 2μ - λ - 3 + 1 into this
तो ये हो गया 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां से हमें सॉल्व करके क्या मिला, 6 + 2 8, 8 + 2 10 म्यू एंड -4 लैम्डा, -5 लैम्डा एंड -9 लैम्डा एंड 2 -3 -1 -1 एंड -8 -9 = 0। और यहां से हमें क्या मिलेगा, 9 म्यू + 4 13, 13 14 म्यू एंड -6 -2 -8 -10 लैम्डा एंड 3 -6 -3 एंड -7 = 0। अब ये हम दो इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसे आप अपने आप कर लेना। यहां से आपको एक लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी इनको सॉल्व करके। तो उससे क्या मिलेगा, हमें लैम्डा और म्यू मिलेगा तो हमें पी और क्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहां डालेंगे, पी मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। अब ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो क्या हम लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं? हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म हमें पता है लाइन पी क्यू। ये 2 पॉइंट फॉर्म मैं लिख देता हूं, क्या होती है 2 पॉइंट फॉर्म, ये होती है x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1 एंड z - z1 by z2 - z1। ये क्या होता है, ये लाइन की इक्वेशन होती है जिसके दो पॉइंट्स दिए हों x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो जो p पॉइंट हमारे पास आएगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे x1 y1 z1 के प्लेस पे, और जो q पॉइंट आएगा वो हम डाल देंगे x2 y2 z2 के प्लेस पे। तो यहां से हमें pq लाइन की इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। सो वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन pq। तो इसी के साथ ही हम ये स्ट्रेट लाइन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन को स्टार्ट करेंगे।